মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত্য সুন্দর আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত্য সুন্দর মহিমা তব উদ্ভাসিত মহা গগন মাঝে বিশ্ব জগৎ মণিভূষণ নিষ্ঠিত চরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত্য সুন্দর গ্রহ তারক চন্দ্র তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে গ্রহ তারক চন্দ্র তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে করিছে পান করিছে স্নান অক্ষয় কিরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত্য সুন্দর ধরণী পর ঝরে নির্ঝর মোহন মধুশোভা ফুল পল্লব গীত গন্ধ সুন্দর বরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত্য সুন্দর বহে জীবন রজনী দিন চির সুন্দর ধারা বহে জীবন রজনী দিন চির নূতন ধারা করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত্য সুন্দর স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ স্নেহ দয়া ভক্তি কোমল করে প্রাণ কত শান্তন কর বর্ষণ সন্তাপ হরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত্য সুন্দর জগতে তব কি মহোৎসব বন্দ
সম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে आनन्दलोके मङ्गलालोके विराजो श्वतसुन्दरो. And while he was talking, I happened to be there, and he was talking about some great mystic. A young girl, aged a young lady. He met her when she was staying somewhere in Dakshineshwar village. Okay. And so he was relating how he went and met her. And he found her in an otherworldly state. And she was half aware of this, half somewhere else. And then he put her a number of philosophical questions. वो बोले गुरुदेव को, स्वामी जी क्या आश्चर्यचकित हो गया. Before my question was completed, already the answer came pouring down like a waterfall. कहाँ से आता था वो ज्ञान भगवान जाने, कहाँ से आता था ये मुख से निकलता था. और हमारा मुंह बंद हो गया. जितना प्रश्न पूछना है सब प्रश्न पूछा. एक प्रश्न के लिए भी कोई उत्तर बाकी नहीं रह गया, कोई भी शंका नहीं रह गया. एकदम निर्मल हो गया हमारा विजन. और हम इतना आश्चर्यचकित हुआ. हमारा फ्रेंड्स पुणे में फर्गूसन कॉलेज करके बहुत बड़ा कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर था फिलासफर, उनके मित्र थे. एसोसिएशन फिलासफर्स एसोसिएशन, उन लोगों को भी एक्सपीरियंस देना चाहिए करके वहाँ कितना दिन आप यहाँ रहेंगे सब वहाँ के आसपास पूछ करके he went to Pune and brought about 3 or 4 other professors. They all grilled Ma with so many questions. Went back. Absolutely. So beautiful. So wonderful. So wonderful. He was relating this to Gurudev. How did you feel, sir, when you met Ma for the first time? What was the impact she had on you? You see, she was not in her own private room alone by herself. Right. She was sitting in a big hall with 100 people chanting Gayatri, doing japa, and a number of people around Yajna Swaha, 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 ऐसा करते हुए. And every couple of minutes someone used to come and ask her some instructions. She used to say, do this, do that. So she was busily involved in what was going on. And hardly for a couple of minutes also she was alone. कोई ना कोई आता रहा, कोई ना कोई कुछ इंस्ट्रक्शंस पूछता रहा, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे, कोई आया तो उनको स्वागत करती थी, यथोचित उनको आसन देते थे. ये तो माँ व्यवहार में माँ कितना सरल और कितना पर्टिकुलर देख करके सीखना चाहिए. वो थी नहीं यहाँ, फिर भी वो थी, हमसे ज़्यादा थी. ऐसा. Because we hear that her consciousness is present at every level, whether it is on the physical plane or any other plane that we talk about. You see, actually, it is an inexpressible Leela of Ma. Right. She was only on one level of consciousness. Right. She was not on many levels of consciousness at all. Right. And that level of consciousness is a translation, is the transcendental realm of Parat Brahma consciousness. Right. जहाँ पर द्वितीय नहीं है, Right. कोई नाम रूप नहीं है, Right. देश काल नहीं है. Right. She was always in that Parat Shuddha Brahma Chaitanya. Right. 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 Who do you think is Ma? Ma, Whom do you think is Ma? According to you, who is Ma?
Is it the word Ma You see, or is it a consciousness? Consciousness. I never regarded Ma as a person. Right, To me, right, Ma was a spiritual phenomenon. phenomenon. अभूतपूर्व Right, एक युग विभूति, right. एक phenomenon. Right. Phenomenon को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है. Hmm. She was a phenomenon by herself Right. and incomparable, with no parallel. Hmm. Because she was never born in Maya. Right, Even when her mother gave birth to this little baby, right, the baby was conscious about everything. right. The baby knew who I am Who I am. Right, and what is all going, कुछ नहीं. right, right. ऐसा अपना स्वयं स्वरूप ज्ञान के साथ वो शरीर के अंदर आविर्भाव किया. More beautiful. जन्म नहीं लिया, शरीर के अंदर आविर्भाव किया. True. और उस पहले जन्म के पहले दिन से, शरीर के पहले दिन से आखिर तक वो She was in that state. वही कॉन्शियसनेस में वही रहा. consciousness. शरीर में परिवर्तन हुआ, Right. उम्र बढ़ा, ऐसा हुआ वैसा हुआ. Right. शरीर की हिस्ट्री अलग है. Right, But she had nothing to do with it. right, right. She was one with all creation. And वो कई बार बोलती थी, बाबा कुछ नहीं हो, जो था वही है। तो जो आप भी है और ऐसा ही रहेगा. Right. So माने she was timeless. Timeless. Right. Time had no meaning for her. जो था वो अभी भी है, वो भी हमेशा होगा. वो अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वरूप Right. एक तत्व था. Right. एक तत्व. और सिर्फ एक बार वहाँ इसके पहले दिन संयम के पूर्व संध्या काल, अभी और संयम के बाद अंतिम दिवस को, उत्सव के दिवस, भंडारे के दिन, सब हरिद्वार के मठ मंदिर के मंडलेश्वर सब आते थे. वहाँ जगतगुरु आश्रम करके है, वहाँ प्रकाशानंद करके बड़ा उद्दंड आदमी. और वो बार बार माँ को तंग करता था. माँ अब बोलो, बताओ आप कौन है, कौन है. तो माँ बात को टाल देती थी. पूछो ना, कई विद्वान बैठे हैं, उनसे पूछो ना, ऐसा बोल देते थे. नहीं 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 नहीं, मैं औरों से मैं नहीं सुनना चाहता हूँ, आपके मुख से सुनना चाहता हूँ. और वो टलती थी. एक बार बहुत जोर लगाया उन्होंने, बहुत जोर लगाया. माँ को अंदर से क्या हो एक आया पता नहीं है, क्या बार बार पूछ रहे हो. ये पूर्ण ब्रह्म नारायण है, पूर्ण ब्रह्म नारायण. वो एक ही बात, उसके बाद चुप हो गया. और वो भी चुप हो गया. हाँ, वो भी चुप हो गया. उसके बाद कभी ये सवाल रहा. और कुछ एक विचित्र कुछ संबंध था ये शरीर का और माँ का. ये उन्होंने बोलने के पहले ही हमको पता था माँ यही है. इतना लफ्ज़ में नहीं है, पूर्ण ब्रह्म नारायण नहीं है. अनादि अनंत देश काल रहित, आदि अंत रहित एक चैतन्य का पुंज है, शुद्ध चैतन्य का पुंज है. लुमिनस mass of dazzling bliss consciousness. That is, I have always felt You've always been aware of that. I have been aware, and therefore, whenever I saw Ma, I did not feel that I was meeting a individual, a Vyakti. The moment I used to say I am standing before divine consciousness, so I used to fall flat and do Dirgha Danda, Sashtanga Namaskar. तो हाथ भी ये करके कहाँ भी हो,
हाँ, ये रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में राइट, वो आती रही, राइट, वो कहीं हरवन आई थी और बाहर आकर के गाड़ी में चढ़ने की अवस्था में थी, मैं वहाँ जाकर के पहुँच गया। वही मिट्टी में धीरे धीरे देखो 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 देखो, हाँ बोलते देखो देखो, बाबा जी उठो 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 उठो, उठो उठो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा बोलते थे। so sweet. और मैं उसका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपके चरण के आशीर्वाद से हमेशा आसपास में देखो देखो बाबा क्या बोलते हैं। ज्योति ये ज्योति रूप जाला
spiritual interest before you met Ma? always, from the very childhood. Can you tell us a little bit what you used to do from your childhood? I used to live the life as everybody lives, Huh? but in our family trend, that was a religious trend always. Uh-huh. And that as that were all that samskara. Uh-huh. Hmm. So what were you doing? You were roaming around meeting Mahatmas. Did you meet a lot of Mahatmas before you met Ma? Yes, lot of. Can you tell us about it? That I've got a list of people, but the prominent among them were Narayan Swami of this Kailas, Haji. and one from Gujarat, Prem Rai Bapu, Uh-huh. and this other from this Sai Baba's series, one Kammu Baba from Goregaon. Uh-huh. So how And did you feel when you met them? Did you have any impact when you met them? Or you always, were still seeking? no, on the contrary, when I went, they were also thinking that you come. They were just telling me to come over there. Acha, acha. Uh-huh. So then how did you meet Ma? Somebody told you that aisa koi hai Anandamayi Ma, or what happened? I casually read some of the books of Sri Raman Maharshi and Sri Aurobindo, Sri Ramdas ji and all other saints. Huh? And casually I was reading Ma's book. Huh? And you see, I told that it is better if I can see Ma. Uh-huh. And after 2 days somebody came that Ma has come to Bombay. Acha. Then how? And then I told, and Ma is staying some incognito, Huh? and she is leaving today. Huh? I thought, when? They should say in the evening some Gujarat mail, she is going to Ahmedabad. Acha. Then it was about 5:30 Uh-huh. when I heard this thing. I thought the train was about 6:45 or so. Uh-huh. So I just rushed to the, I thought I will go to the person. That is not possible. Of course, it was Sunday, and then Bombay, the trams and buses are going, and it was always full. So I thought that, you see, let me take a train. Go to, you will not get the train. Acha. You will not be able to go to the station. All the buses are crowded. Now let me take a chance. So I went on the main road, and one bus stopped just over there. Acha. And I jumped over and went to the Bombay Central Station. And I just have that platform ticket, and I heard the whistle. The Gujarat mail is leaving. Still I went on the platform, and I was running and then asking everybody, where is Ma's compartment? So they were just laughing, who is Ma? Because they were not knowing for whom I am asking. Then I saw some of the Ma's our relatives, they were coming back. He told Ma is in that compartment, the first class compartment. So just the train was just leaving the last part of the platform. And I saw only Ma's. Ma was just looking like this, and I just saw Ma. Acha. That is the first and last impression. What did you feel that time? That I cannot say what I felt. But that was the great change and the transformation, whatever you That call. very moment. That very moment. Okay. After that, what did you do? Did you want to meet Ma after that? What did you do? That is, I can't say, but that is the point from where all the things started from within. Right. So after that, did you meet Ma and talk to her about what you went through the first time you saw her? That only after there was one Ardha Kumbh in Allahabad. Huh. Only after that, after some few years back, I saw Ma. Acha. A few years after this happened? Yes. Acha. Till then, what were you doing? I've been doing what was going from within. I've been observing what was going from within. What was going on? And that was what I feel, that was that transformation which was going on. I was just not able to take food, anything. Acha. Somebody was that, what is he doing? I was going for my work, doing everything, but I was not feeling tired. Acha. But I was in some mood, I can't say what Would was. you call this a Shaktipat?
that I can't name anything as Shaktipat Okay. because I don't know exact meaning of Shaktipat. Okay. So This then- is a very common word at these days. Right. So after that, when you met Ma, how did you just decide to join Ma's ashram or come into the ashram? How did you decide to do that? I believe you were an advocate once upon a time. That is the past story. Yeah, that was your past life. So how did you give up everything and decide that now I want to go to Ma's ashram? That was the tendency from the very childhood. Right. Because always when during my holidays I was going away in the hills or somewhere, unknown places, without telling anybody. Acha. So that tendency, the root was there. Uh-huh. But after seeing Ma, I felt that, you see, and I had no liabilities. Right. So I thought it better to lead this life. Right. But Ma told me that you wait for some time. Acha. Because that one thing was there which I now feel that that period I require, my presence was required there. Uh-huh. And then one day when I went to Solan and I told Ma that now I am ready. Ma, but can you leave now? I go, here and now. Oh, wonderful. So wonderful. Because I got always prepared. Right. Right. How, we would like to ask you a few questions regarding Ma. Firstly, what do you think is Ma? Ma is Ma. Ma is Ma. Would you say she is absolute truth? Would you because lots of people say that we know Ma as Shakti, we know Ma as Shiv, and some people What say others Durga, say, and some people what say others Krishna. say I can't Huh. say, but as truth is truth, how can you compare truth with any other thing? Yeah, that's what. So Ma was absolute, so Ma is Ma. Right. Now we hear, if we say that Ma is that absolute truth, if we say that, why is it that at such a young age, when she was say 4 years or 5 years or 6 years, she would hear the name of God, जैसे कि राम का नाम सुना या कोई भी नाम या कीर्तन सुना, तो she would go into this bhav or trance, what they call, or samadhi, what they call. What was that was happening in her That- body? Because if she was the absolute truth, I why cannot would this say what happen? for Ma what was going on. Uh-huh. For Ma was Ma, Huh. so what Now, was how going do you in Ma, explain this happening in I her cannot body? explain for Ma anything. Acha. And there is a thing like khayal, Ma's khayal. We say if Ma's khayal hoye to badhu thai. What is that khayal? That is, with my little understanding, it is a very spontaneous thing. Uh-huh. If you put a hammer on this bell, something, and sound comes spontaneous, no? Uh-huh. There is no previous thing, no preconceived idea, nothing of that. It Right. is just spontaneous like this. Right. Okay. Anything more you want to elaborate on it? On Nothing. khayal? Nothing. Like we say that Ma had no mind Yes. and she was without any ego, Yeah. right? And so whenever she had the khayal, she would. So would you say that khayal would be connected with the cosmic consciousness? And The person who asks the question, the answer comes automatically, spontaneously. right. Accordingly. And why is it that sometimes you asked questions to Ma and you never got any answer? Was it that person asked the question to get no answer? That is why he got. We say just she's a reflection. She's a reflection to your own self. कि जैसा बजाओगे वैसा सुनोगे. But the person has played, but she hasn't got any answer. Who's Why? who? Who can say who he has played like that? Sorry, I didn't understand. माँ कहती हैं जो बजाओ ऐसे सुने का, तो वो जो उसने बजाया कि नहीं कौन जानते? अच्छा, तो ठीक से बजाया नहीं हो. बजाया नहीं तो उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई नहीं आया. अच्छा, हाँ, right, okay. Now, if we say that since Ma is Mahashakti and beyond plenary avatar, how can that Vibhuti manifest in a human body? Of course, I don't understand with my little understanding, but you see, Ma can be the absolute can do anything. जो अखंड है वो सब हो सकता है. भगवान का राज में सब हो सकता है. भगवान का कोई असंभव असंभव संभव असंभव हो जाता. माता तुम्ही पिता तुम्ही
चिरसाथी हे तब प्रेम झरे ओई दिवाराती हे जीवने मरणे मम तुमी साथी हे तुमी भरता तुमी कर्ता तुमी गति हे प्राणाराम प्रभु तुमी अभिराम हे हो प्राई तब नाम अभिराम हे मन तुमी प्राण तुमी बुद्धि तुमी हे साधन भजन तुमी सिद्धि तुमी हे अरूप स्वरूप तुमी सर्वरूप हे असीम ससीम तुमी अपरूप सकल व्यापिया तुमी बिराजिछ हे एक तुमी बहुरूपे अवस्थित हे तुमी बोध तुमी ज्ञान तुमी आत्मा हे अखिल विश्वेर सार परमात्मा हे हमारे जागृत करो अनुनय हे तुम्हारे प्रणाम हो प्रेममय हे met Ma for the first time and here in Varanasi in January 1944. Because the attraction for Ma, it was gradual. That is the thing. It was gradual, and whenever I used to come to Varanasi, or when Ma also used to go to Calcutta, I also, naturally, I don't know why, because I was attracted to go to Ma, meet her. Acha. That's all. So it was just an attraction, you can't define what it was at that point. Then how did you decide to just give up everything else, whatever you were doing, and come and stay permanently in the Kanyapit and do all that? I don't know. I can't say if I've given up everything. I can't say that. Yeah, but the fact that you are staying in Kanyapit today No, and but you it was, are, you know. it was also something very strange. So I will tell you Yeah. that. Of course, it is very personal. I think I have not told Okay. the girls also who have been here for more than 30 years. Yes. So immediately after my university exam, I completed my postgraduate exam. Right. It was very strange that I was immediately called for a job. Called for a job, and that is also you would be surprised. That also I was
before my exam result was out, it was something unusual, really, that I was called for, I was provisionally appointed for the post of a lecturer in the Calcutta Women's College. That was in those days. That was a very, and no, particularly I was then only hardly 21. Right. Hardly 21. But because I was very favorite with my professors, they recommended my name, and so I was provisionally appointed. Right. Subject to the examination result was just scheduled to be out in a question of 2-3 months. Right. So after I suddenly felt the urge that before I joined my any professional job in Calcutta, so I should pay my respects to my grandmother, to my mother, to my uncle, and also to my is in Varanasi. Okay. I came here, it was also just coincidence or what I can't say, that Ma was there. Achha. And the moment I think within 5 minutes, Ma was loitering on the stairs. And Ma called my uncle and she asked something. That's all. Within 5 minutes, Ma called me. Ma called me. So Ma said that Kala Chand has said that you are going to join some job in Calcutta. So, but the Vidyapit, Ma said only these words. Vidyapit boys are coming here. Even then, the Savitri Mahayagya ceremony was about to start. In January 47. So Ma said, why don't you take charge of that you were inclined to go into the teaching line. So why don't you take charge of the boys' education here? Achha. I was a bit perplexed. That's what to say. Right. I said, I will just think over. That's all. That was the only reply I gave to Ma. Achha. And then I think within the next 2-3 days I left. Ma also never said anything. I think a couple of 2-3 months afterwards, Ma went to Calcutta ashram in Calcutta. The ashram in the original ashram in Igdalia Road. I don't know why I got the urge to, I suddenly got the news from some source that Ma was in Calcutta, so I went to meet her. And as soon as Didi Gurupriya, she was there standing near the door like a sentry. Yes. Like a sentry. And as I was going up, as soon as Didi saw me, Didi immediately caught hold of me as if I was a thief. Caught hold of me and took me to Ma's room. Yes. I was scared of her myself. Took me to Ma's room. That Kalachand Dada's nephew has come. That practically I had absconded from here, as if I had absconded from here. So I went into Ma's room and did the pranam. Ma said the very words, जो आज करना तो अभी करना, अच्छा. कल करना तो आज. अच्छा. In Hindi. In Hindi. And that's all. The meaning was very clear. I had no intention to come to the ashram and take charge of the education of the ashram boys. But जो कल करना है तो आज करना है तो अभी. Ma just looked at me and I didn't say anything. Ma said, of course in Bengali, this body is going to Varanasi today
That was 5th of February 1947. My I God, still, you I still raised- remember the date. 5th of February 1947. This body is going to, ये शरीर आज जा रहा बनारस, तुम भी हमारे साथ चलो. I couldn't say, as I kept quiet. Then Didi was the commander in those days. Didi from behind told me, Ma is saying, you just go and bring your luggages and just we shall go together. Command, order. So like an instrument, Yeah. I had to go back where I was staying. I came back within, I think, a couple of hours, and I didn't inquire about my ticket or anything, my railway ticket, but I saw when I came to the ashram, Ma had already made arrangements and made arrangements for me to have the ticket in our own compartment. So I traveled with Ma for the first time in her own compartment. Ma, Didi, myself, and Buni Didi. She was a great devotee. Ma's one of the most original, principal sevikas in those days. Yes. So we four came to Varanasi, and almost like an instrument, Yes. when I had nothing to say. Right. And from 6th of February, I've just completed on 6th of February these 54 years. My God. Yeah. Congratulations, Anand. Because that 6th of February I remember very much. Yes. Yes. Very much. Yes. The 6th of February, that what happened on the 5th of February, that I followed Didi's instruction, Yeah. but I didn't say anything. जो कल करना है तो आज करना है तो अभी. Because I knew that I was to come. Yes. Absolutely. I was to come. I was undecided. Yeah. So when you suddenly decided to take that step and go and stay with Ma, were you blank, or did you feel that now this is what Ma has told me, I have to do it, or did you have a doubt, or did you feel, let me think about it, No, or let me see what? No, I had no Were doubt. you so clear cut in your mind that this is it? You know? Actually, I was like an instrument, and I had no option to say no. Right. That was the feeling. Yeah. Without any doubt, without Yeah. anything. Yeah. Because I had to, of course, that is not in my nature. Right. That is not my nature. But before Ma, Right. I couldn't say no. Right. I couldn't say no. Right. That is not the list about sadhana. That is the thing. Even now, I'm not here. I'm the last person to aspire for what is that? Moksha or samadhi or what all those people say. I'm least interested. Right. From that very day, I dedicated myself to Ma and for Ma's ideals and for the ashram seva. Right. So that was my beginning, Right. and I think that will be my end also. Right. That everyone should try to follow what Ma has told us to do. That is the thing. And I personally feel that Ma was perfection incarnate. That's why I was attracted to Ma. Right. Not because of what supernatural Right. heights or Right. anything like that. Right. That she was perfect. She taught me from A to Z, from the lowest work to, I am not a Brahmin. She just taught me also everything about puja and pratishtha and everything. Everything. Right. And everyone used to be astonished that Panuda is not a Brahmin. Right. How Panuda is managing all these things. Right. That was marvelous. Right. Right. I can't say. So one has to follow what Ma has taught us, Right. what Ma has asked us to do. Right. Anandamayi, Bhaskarananda.
जय माँ. Before you became Nirvananji, what was your name? I was called K.K. Banerjee. K.K. Banerjee. K stands for? कुसुम कुमार बैनर्जी. माँ हमको ऐसे पूछा, माँ के पास शी वॉज सो नियर एंड डियर टू यू. आपको सब, माँ को सब आप बोल सकते हैं, कोई आपके भीतर कोई ये नहीं है. शी इज़ वन विथ यू. उसके साथ माँ हमको सारा पूछा, ने क्या किया, तुमने कहाँ किया, कैसे किया. मैंने हम लोग तो कोई जैसे साधारण लोग होते ऐसे ही हम लोग हैं. तो माँ ने हमसे पूछा, बोले कि तुमने तो ऐसे ही हॉस्टल में रहते थे, तुम सब, हमारा हेड कुक था, कभी मुसलमान का खाया, चंदा का, इसका उसका, तो तुमको तो बहुत शरीर को शोधन करना पड़ेगा. तो क्या बहुत कठिन है तुमको बहुत. तब उन दिनों में ऐसा एक था, हमारा मौसी का घर में एक ये था, एक भाई जी का मातृ दर्शन था, उसको मैं पढ़ता था. वो देखो सब टाइम का जुगा जुग है, वो सब हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है. तो वो मैं पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जो माँ को शरीर मन सब हमने दे दिया, माँ जो कहे हम वही करेंगे. माँ अगर बोले तो कूद पड़ो, गंगा जी में कूद पड़ो, डोंट केयर. शरीर मन माँ का है, माँ रखना होगा रखेगा, जाना होगा जाएगा. उस तरह वैसा एक बात था. माँ बोलने से करोड़ों जन्मों हम संसार में माँ बोलेंगे तो ठीक है, हम नंगा होके हिमालय में चले जाएंगे, मरना है मरेंगे, हमारा क्या, माँ जो करेगा करेगा. ऐसा एक मन का एटीट्यूड था. तो मैंने बोला तुमको चांद्रन करना पड़ेगा. तो चांद्रन क्या है, तो चांद्रन बोला कि तुमको जो चंद्र का कला है, अमावस्या के दिन एकदम कुछ नहीं खाओगे, दूसरे दिन एक ग्रास खाओगे, दूसरे दिन तो तीन माने 1 मॉर्सेलर की. तो उसको चावल को दूध से पका के, उसमें चीनी उनी नहीं, उसको एक ग्रास वो मंत्र पढ़ के गायत्री पुरस्कार 3 बार करके गायत्री स्नान करते थे. सुबह 1000 गायत्री जप, दोपहर को 1000, रात को 1000 गायत्री जप, और वो बना के मैक्सिमम 8 खा सकते हैं हम, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते. तो फिर वो बोले तुम मर जाओगे. हम लोग मर जाएंगे. तो जो आपका ये होगा तो होगा. तो उस समय और कोई हमारे साथ आ नहीं सकता था, खाली माँ कुड कम आके बात करती थी. हम अकेला कॉन्फाइंड थे एक घर में, वो करते थे. इतना पीला पड़ गए थे, बैठ के खड़ा होने से हमको चक्कर आता था. खाते होते कुछ थे नहीं, ऐसे करके 1 महीना. फिर पूर्णिमा में जाके 15 ग्रास, फिर 14 एकत्र करके फिर अवश्य जाके ये चांद्रन का जैसे शरीर शोधन होता है ये करके वो एक बार कराया. ऐसे वैसे मैं बहुत कराया, ऐसा करके फिर पुरस्चरण कराया. ये जो गायत्री पुरस्चरण 2.5 साल 3 साल हम भास्करानंद ये सब थे. और हम लोग जो है साधु बनने के लिए नहीं आए. इट वॉज माज अट्रैक्शन. अगर माँ बोले कि तुम कोई साधन करो, भजन करो, तो दैट इज पनिशमेंट. ऐसा यही था. माँ जब देखते थे कोई हम माँ का कोई बात नहीं सुना, कुछ नहीं, तो माँ बोले जाओ तुम उत्तरकाशी चले जाओ, वहाँ जाके भजन करो, ये करो. दैट मीन्स दैट्स द पनिशमेंट. कभी माँ किसी को भजन करने और बोले, उसका मतलब है हमने किसी का माँ का कोई बात नहीं माना, तो माँ इज गिविंग अस पनिशमेंट. तो हम लोग पुरस्चरण करे. ऐसे ऐसे माँ बहुत कष्ट दिया. फिर 3 बार करके स्नान करते थे हम लोग. सुबह 1 बार, गर्मियों में तो ठीक है, ठंडी में बोलते थे कि 3 बाबे हैं. और सुबह खाली खाना, दोपहर को सुबह 4 बजे उठ के स्नान करके फिर ये करना, दोपहर को फिर करना. हम लोग इस रसोई बना, बहुत चीज़ नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, शाम को नहीं खा सकते. शाम को खाली फलाहार करना पड़ेगा. वो दूध या दूध में वो सामा चावल या फल ऐसा हमेशा मिलता भी नहीं. वो 3 साल करवाया. तो ऐसे ख्याल हुआ, वहाँ कराया, हमारे अच्छे के लिए ही कराया, इसके लिए नहीं. बहुत रिस्ट्रिक्शंस, अभी भी रिस्ट्रिक्शन. हम लोग खा नहीं सकते कोई चीज़. ये जो हम लोग कहते हैं ना, हमारा 80 साल, आई एम रनिंग 80, आई हैव टू कुक माई ओन फूड. हमेशा इच्छा करता है. जैसे कि मैं आज बीमार हूँ, अभी 1 गिलास पानी भी तो लोग बोलते हैं कि तुम शरबत बनाओ, ये कर, वो तो मुझको ही बनाना पड़ेगा ना. तो कभी कभी इच्छा नहीं लगता है. तो व्हेन आई स्टे देयर, कोई बोलते कृष्ण प्रिया थी, हमारा ब्लड प्रेशर हुआ था, बोला कि तुम थोड़ा ये करो, तुम वो बना के थोड़ा वही साबुदाना बना के खाओ, कि थोड़ा ये करो. मतलब बोले इच्छा नहीं होता है. आई डोंट फील लाइक. कोई 2-3 आदमी रहे तो फिर बनाने में आता है, नहीं तो वही खिचड़ी बनाओ. एक किसी तरह से पेट का गब्बर भरना है, खाना पड़ता है, थोड़ा भूख तो लगता है, तो यू हैव टू डू, वो करना पड़ता है, कोई उपाय नहीं. खैर फिर हम लोग काशी में आए. काशी में आके माँ के पास रहा कुछ दिन, रह के देखा गोपीनाथ कविराज ये सब लोग बड़े बड़े हैं. और जब सोलन में गए थे, सोलन में जाके हमको तो बहुत बोला ना कि हमको बहुत एक ये थे शोभन महाराज एक थे, कृष्णानंद ब्रह्मचारी. तो वो ये साधन समर का वहाँ पर से सीख के आया था. वो पूजा
मुद्रा उद्रा करके वो सब इस तरह से ये कर रहा है, वो सब जो नाम यज्ञ का भोग का निवेदन कर रहा है। मुझे वाह कितना सुंदर हाथ का सब मुद्रा बना रहा है, ये कर रहा है। तो मतलब मेरा इंक्लिनेशन इस तरफ है ना, मुझको उसी तरह ये कर रहा। और मेरा मन में हुआ कि मैं तो किसी गिनती का नहीं हूँ, मेरा क्या व्हाट आई एम फॉर, मेरा माँ, मैं तो बिल्डिंग नहीं बना सकता हूँ, मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ, मैं माँ को पाठ नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, भंडारा नहीं करा सकता हूँ, मेरा वैक्यूम है, मेरा माँ के साथ मेरा क्या संपर्क है, वो मेरा मन में हुआ ना ये। तो फिर पीछे माँ, और कभी माँ ने बोला नहीं कि तुम साधु बनो। माँ बोलते तुम लोग ये शरीर को पूछो तो बोलेंगे कि हाँ ये भगवान का पथ ही पथ, ये छोड़कर पथ नहीं, तभी तुम जैसा सुन। कभी नहीं बोलेगा तुम साधु बनो, ऐसा कभी नहीं बोला, क्योंकि अगर बोल देगा फिर पीछे हमारे हम बोलेंगे माँ आपने साधु बनने बोला, अभी तो भगवान नहीं मिला। हम लोग सोचते कि भगवान मिलना कि अभी साधु बन गया, अभी हम लोग दीक्षा उक्षा लोग लेते ना, लोग के बोलते हैं कि 1 साल हो गया हम दीक्षा लिया। अरे भाई वाल्मीकि मुनि इतना तपश्चर्या किया, करते करते वाल्मीकि हो गया, पूरा लोग ढक गया उसको ये करके, तब भी उनको भगवान नहीं मिला। तो हम लोग सोचते इतना ही आसान है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे, कोटि, माँ बोलते कोटि में गोटी, कितना लोग इस तरफ आते ही नहीं। देखो कितने हरिद्वार में लोग हैं, क्या आदमी यहाँ पर आया, तो आया भी कितना लोग है, सब लोग तो ज़्यादातर घूमने फिरने आया, अपना रोग अच्छा करने के लिए आया, अपना पैसा के लिए, अपना वाइफ का बीमारी ठीक हो जाए, अपना प्रमोशन हो जाए, अपना बिजनेस अच्छा चले, सब के लिए, माँ सब के लिए आते हैं। दीदी का जो फर्स्ट पार्ट है उसका इंट्रोडक्शन में लिखा है गोपीनाथ कविराज ने कि माँ क्या है। जो आपने पूछा था ना कि माँ क्या है, तो माँ क्या शादी का है, माँ का क्या है। माँ ने बोला हमारा कोई प्रारब्ध नहीं है, तो माँ का कोई माँ क्या ये है, ईश्वर कोटि के हैं। तो ऐसे बहुत विचार किया कि माँ क्या है, माँ क्या शादी का है, माँ क्या कोई माँ का कुछ बाकी था। बोले माँ ने बोला हमारे शरीर का प्रारब्ध पूर्व जन्म नहीं था, ये शरीर तुम लोग चाहा था मिला, तो ये ईश्वर कोटि नहीं, ये कोटि नहीं है, ये जीव कोटि नहीं है, तो क्या है। तो फिर भाई जी ने पूछा, तो भाई जी ने माने बोले उससे तुम्हारा क्या जरूरत है, तुम शरीर, रामकृष्ण परमहंस ने भी बोला कि ये तुम आम का बगीचे में आए, आम का बगीचे में आया, तुम्हारा क्या जरूरत है, कौन बगीचा है, कहाँ से खाद आया, मिट्टी कहाँ से डाला, क्या कौन ने लगाया है, कौन इसको देखता है। अरे तुमको आम खाना है, खाओ, खुश होकर आम खाओ, कौन लगाया, कितना पेड़ है, कितना हर एक पेड़ में कितना है, उससे तुम्हारा क्या। गोपीनाथ कविराज ने से बोला कि जो माँ को जानना चाहता है, तो जो भक्ति मांगता है वो भक्ति मिलता है, जो मुक्ति मांगता है उसको मुक्ति मिलता है, लेकिन उसको माँ नहीं मिलता है। जो भक्ति और मुक्ति दोनों को, माँ को, जो बच्चा हम है, हम तो माँ को चाहते हैं। हम आप जो पूछा था ना, माँ, माँ हमारा माँ है, हम तो भगवान को माँ रूप से मांगते हैं ना, कि भगवान हमारे माँ, हमारी माँ है, जो समझेगी तो वो ही हमको देगी। माँ क्या है नहीं वो हम क्या समझेंगे, हमारा जानने का क्या जरूरत है। हम तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि एक जो चीनी का पहाड़ है, उसमें एक तो काला काला चिवटी होता है, उसमें इतना सा एक, बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ पूरा, अरे तू इस पूरा इतना जो अमृतों का जो समुद्र है, अमृतों का समुद्र में इतना सा एक चीटी कितना खाएगा। तो हम लोग तो इतने छोटे हैं, ये जो अनंत विश्व ब्रह्मांड है इसमें कितने तारा है, लाइट विद दिस ट्रिमेंडस वेलोसिटी, कितना दूर दूर से सिंस क्रिएशन इट इज कमिंग, इट हैज नॉट रीच्ड अस। इतने तारा है, वो सब एक एक सन है। हमारे ये जो सन है ये तो एक छोटा सा तारा है, उसका एक ग्रह है ये, उसका एक पृथ्वी ऐसे ही महादेश है, महादेश का एक ऐसे उत्तरांचल, उसका हिमाचल, उसका ऐसे ही हम लोग बैठे हैं। उस हम लोग तो चीटी भी नहीं है, तो हम भगवान को क्या पा सकते हैं। भगवान को चरण में सब समर्पण कर दें, भगवान हम जानते नहीं कुछ, तुम हमको जैसे करो, टोटल, माँ को भी टोटल अनकंडीशनल सरेंडर, भगवान तुम जानो हमको किस क्या जरूरत है। वी शुड ओपन अप आवरसेल्फ कि भगवान जो सुप्रीम पावर है, जो मातृशक्ति है, जो प्रकृति है, महाप्रकृति है, उसको सारा अपने को, हम उनको ऑब्स्टेकल नहीं दे, हम अपना अहंकार को नहीं रखें कि हम ये नहीं करेंगे उन्हें के हम। और जिनको पूछा ना कि करिष्य वचनम, तब अष्टादश अध्याय सूच के पहले बोला कि नजोत्सव, पूछा कि नजोत्सव मैं शुद्ध नहीं करूंगा, मतलब मेरा अहंग रह गया। फिर पीछे जब बोला कि शिष्य से हम शादी मामता प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझको उपदेश करो,
फिर उपदेश करके जब कि सरेंडर करे टोटल अनकंडीशनल, बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मत्तम, बोला कि करिष्य वचन, तो आप जैसा कहोगे ऐसा ही करूँगा। इस तरह हम लोगों का जब कि अहंकार थोड़ा भी नहीं रहेगा, सब जब माँ के चरण में सब छोड़ सकूँगा तभी होगा। इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो फिर मैं तो पिताजी के पास, माँ ने बोला तुम जाओ पिताजी के पास मिल के आओ। हम तो बोला कि पिताजी तो हमारे ऊपर बहुत दुखी और बहुत नाराज़, बोला तुमको पढ़ाया गया ये क्या। मैं 2-1 चिट्ठी लिखा कि माँ मैं तो माँ पिताजी मैं अभी समझा कि ये सब कुछ नहीं है, सब अनित्य है, ये कुछ नहीं, आप ही तो हम लोग को बचपन से सिखाया। ये माँ मर गया था, पिताजी को भी बहुत वैराग्य था, तुम लोग शादी नहीं करना, गीता पढ़ना, ये करना सब। पिताजी हम लोग को लेके ब्रह्मचारी के पास जाते थे, गंगा स्नान करते थे। हम लोग को घर में संडे या छुट्टी के दिन में खाना नहीं बनता था, वो तो महाराज जी को छुट्टी देना पड़ता है। तो यूज्ड टू गो टू गंगा स्नान करके जो चंदन लगाते हैं, चंदन लगाते सुबह तो हम लोग खाया नहीं, जलेबी और गरम गरम दूध पीते थे। तो हम लोग सोचते कि जैसे चंदन लगाना गंगा स्नान का एक अंग है, गरम जलेबी और दूध पीना भी उसका एक गंगा स्नान का एक इट्स ए पार्ट ऑफ दैट। वी आर स्मॉल चिल्ड्रन थे। तो पिताजी के पास गए, पिताजी को फिर हमने पहले माँ से पूछा, मतलब माँ अगर पिताजी हम आपके बारे में, पिताजी बहुत नाराज़ है माँ के, कुछ बोलेंगे तो मैं बहुत गुस्सा करूँगा। नहीं पिताजी को, माँ तो सब समझा, शी नोज एवरीथिंग। बोला कि नहीं पिताजी तो तुम लोगों को इतना बड़ा किया, आफ्टर ऑल ही इज़ आवर फादर, हमारे माँ बाप दोनों ही हैं पिता। तो बहुत माँ के पिताजी के पास गए, बहुत खुश हुए, उनको सब बहुत शास्त्रार्थ किया। बोला कि हम तो आपने तो हम लोगों को सिखाया था, अभी आप क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए हम लोग अगर रहें, मैं अभी तक था कि मैं आपके पास पढ़ा रहा था, मैं तो पढ़ने के लिए कहाँ जाता, मैं नौकरी करूँगा, कहीं रहूँगा, मैं समझ लीजिए मैं शादी करूँ, ये करूँ, तो आई विल बी समवेयर एल्स। आप जो हैं आपका पिताजी के माता जी का, आप तो हम लोग को ईस्ट बंगाल में मकान है, आप तो चले आए इलाहाबाद में, तो हम भी तो माँ के पास रहेंगे, आपको तो पता रहेगा। और मेरा मन का अगर आप हमको ना कर देंगे, नहीं हमको जाने देंगे, तो हो सकता है कि मैं कहीं चला जाऊँगा, आपको कोई पता भी नहीं लगा। तो पिताजी तो हमको बहुत ना किया। फिर आखिर में पिताजी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। पिताजी बोला, पिताजी स्टार्टेड क्राइंग, रोने लगे। फिर बोले कि ठीक है, तुमको अगर इसमें खुशी होगा ठीक है तुम करो, लेकिन एक बात तुमको पूछते, तुम्हारा अगर माँ रहता तुम क्या फिर जा सकते थे? तुम्हारा माँ रहने से तुमको जाना होता, जाते तुम? तो हम, आफ्टर ऑल ही इज़ माई फादर, बचपन से हमको बड़ा किया, हमारा भी उनके साथ सेंटिमेंट है। हम भी रोने लगे। हमने बोला ठीक है पिताजी, आप अगर दुखी होंगे, आपको मैं दुखी, आपने हमारा इतना पढ़ाया लिखा बड़ा किया, आपको कष्ट दे के मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन भविष्य में क्या है, मर भी सकता हूँ, क्या भी हो सकता हूँ, ठीक है आप जैसा कहेंगे, आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू, मैं नहीं जाऊँगा, आप जैसा कहेंगे। दुनिया का ऐसे नियम है, जब आप सरेंडर करते हो तो वो भी आपको। फिर पिताजी ने फिर दूसरे दिन हमको बुला के बोला कि अच्छा तुम जाने से क्या खुश हो गए? माँ के बताने तुमको अच्छा लगेगा, हमारे लिए तुमको मन नहीं होगा। तो नहीं माँ, पिताजी आपको को मैं कभी भूल सकता हूँ, आपको तो हमेशा ही रहेगा, लेकिन आपका तो और भी ये है, हम लोग रहेंगे। ऐसे करके फिर पिताजी माँ चले आए। माँ के पिताजी हमको परमिशन दे दिया। मैं तो आगे माँ को खूब प्रेम किया, माँ से खूब लिपटा, बोला कि माँ केल्ला फतेह का। पिताजी तो परमिशन दे दिया, भाई अब तो मुझे साधु बनना है। माय लाइन इज क्लियर, ये हो गया।
कभी कभी जब छोड़ के जाते थे माँ। फिर एक दिन मन में आया, माँ जो बोलते हैं ना, कोई कोई प्रश्न करता है माँ आप कौन है, तो माँ कहते हैं अपना जप करो, जप से सब मिल जाएगा, कौन है शरीर। तो ये कैसा होता है, जो माँ नाम जप करता है उसका माँ मिले लेगा, तो जिसका इष्ट मंत्र दूसरा है तो वो तो कैसा होगा, जो पता चलेगा माँ अंतर्यामी, माँ कुछ कर रहे हैं। तो एक दिन मन में इतना जोर से ये आ गया, तो कभी सपन में कुछ मिला हमको, तो बोला, माँ ने कहा हाँ यही तुम जप करो, तो ये तो माँ नाम नहीं, ये तो दूसरा नहीं, यही जप करो। तो बस मैंने बैठ गया। जिस दिन माँ का ऊपर कभी कभी बदल लेते ना माँ सेवा में, हाँ, तो उस टाइम में मैं सेवा में नहीं, तो बस बैठ गया एक जगह छिप के बैठे, बस अपना मंत्र जप कर रहे। माँ ने कहा जो वो पता लग जाएगा, जो तुम जप करो अपना इष्ट मंत्र लेके, तब पता लग जाएगा। तो अच्छा आज देख लेंगे। तो हम छिप के एक जगह में बैठ के बस एकदम अंदर से जप कर रहे, हर आँख से पानी रहा। जो अगर एक ही होए, माँ राम कृष्ण सब एक ही होए, तो हम जिस नाम से पुकारेंगे तो माँ तो जवाब देंगे। तो कि उस टाइम में तो बहुत दुख हमारा, जो माँ का मालिश कर नहीं पा रहा, माँ का स्पर्श, जो सेवा में रहता वही तो करेंगे। तो मैं तो बस जप लेके बैठा, 10 मिनट भी नहीं गया, पूर्णानंद तब तो शांता नाम था, शांता चिल्लाए पुष्पादी पुष्पादी आप कहाँ है पुष्पादी। जब ज़्यादा बुलाया तो मैंने बोले कहाँ से कर रहे हैं आप जल्दी माँ ऊपर बुला रहे। तो मैंने कहा फिर माँ बुला रही, तो फिर माँ कुछ मलम उलम दे के हमको ये कर देंगे। माँ क्यों बुला रही, ना डांटेंगे, कुछ होगा शायद, ऐसा सोच के ऊपर तो गया करके। तो माँ ने कहा हमको थोड़ा मालिश कर देना पैर में, समझा। देखो जो लेके हमारा मन में इतना दुख हो रहा था, हम बैठ गया बस। तो उस दिन से मैं सोचा जिस नाम में भी माँ को पुकारो वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा। तो इसीलिए उस दिन मैंने निस्संदेह हो गया। जो माँ जी बोला जिस नाम जो भी तुम्हारा इष्ट मंत्र हो तुम बोलो। फिर ऐसा भी देखा इस क्रिसमस डे में सब विदेशी यूरोपियन लोग माँ के पास ध्यान में बैठा, बनारस में देखा रात में। फिर पूछा माँ को, माँ हम लोग अभी किसका ध्यान करेंगे। माँ ने कहा क्यों, तुम्हारा धर्म में तुम्हारा जो है ना। तो बोला हाँ यीशु ख्रिस्ट। तो माँ ने बोला हाँ उनको लेके बैठो, उनको ध्यान करो। तो लोग बोला माँ उनको लेके तो बैठते हैं लेकिन आप आ जाते हैं, ऐसा कहा। माँ ने बहुत जोर से हंसा। तो ये तो उनका मौज, जो रूप से उनका मौज आ जाएगा तुम्हारे सामने, लेकिन तुमको बैठना पड़ेगा। जो तुम्हारा इतना जन्म से जो धर्म में तुम था, जो लेके तुम लोग जो जिसका ऊपर विश्वास इनका, उनको लेके तुमको बैठना पड़ेगा। ये माँ का हर वक्त माँ बोलते थे जो उनका मौज है उनको जेरो। इससे क्या मालूम पड़ता है जो माँ में सब है। ये अभी तब तो माँ का शरीर का ऊपर इतना हम लोगों का आकर्षण था। अभी माँ टाइम दिया, हमारा इस समझ में आता है, अभी माँ टाइम दिया जो अपना साधना से समझ लो कौन है इस कौन तुम्हारे पास एकदम दोस्त हो के बंधु का माफिक हम लोग का हाँ हाँ गीता हाँ। अच्छा माँ ने कहा एक दिन हमको आनंद काशी में राजमाता माँ को एकांत में लेके रखा। तो
माँ ने कहा रोज गीता पाठ करती है। मैंने माँ आपका साथ जब रहते हैं तब कहाँ, मैंने टाइम नहीं बोलने से तो माँ अपना सेवा से छुड़ा के अलग बैठा देंगे, तो इसीलिए मैंने कहा माँ उस टाइम में नहीं करते हैं, जब कन्नापीठ में रहते हैं बनारस में तब करते हैं। तो माँ ने कहा तुम रोज इस शरीर बिस्तरा में लेटे रहे जो करे, तुम शिराना का पास बैठ के मीठा सुर से वो तो थोड़ा गीता पाठ कर लेना। इतना प्यार से कहा तो मैंने सोचा हाँ कर लेंगे, तो किया एक रोज। फिर दूसरा दिन माँ हमको, क्योंकि हमारा तो माँ का सेवा में त्रुटि ना हो जाए, माँ उठ जाए कुछ टाइम ठीक नहीं, उठ के माँ मुँह धोने के लिए बैठ जाएंगे तब सब रेडी करके रखना सब। तो मैंने दूसरा दिन माँ जब पूछा मुँह धोते धोते आज गीता पाठ किया, माँ जानते हैं गीता पाठ? मैंने कहा ना माँ। तो माँ ने कहा अच्छा देखो इस शरीर तो गुरु लोग जैसा बोलते हैं ये तुमको करना ही पड़ेगा, ये आते नहीं इस शरीर का, तो इसीलिए बंधु का पास, बंधु तो एक आबदार माने क्या, तुम हिंदी में क्या बोलते हैं, जो एक बंधु का पास बंधु का एक अर्जित होता है और वो बंधु तो रक्षा करते हैं, इसीलिए शरीर बोला जो वो सुनेगा। तो बस इसका पीछे से वह शुरू हो गया। ये और कितना कितना घटना ऐसा हुआ, जैसे माँ ने कैसा हम लोग उनको इधर इतना प्यार से इतना ऐसे कभी थोड़ा खोचा दे के ऐसा करके माँ ने ये सब सिखाया धीरे 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 धीरे। और एक बात माँ हर वक्त, बिल्लू जी माँ का बात बहुत मानते थे। हाँ बिल्लू जी हुआ वो उसका मौसी दीपक का मौसी, हाँ। तो बिल्लू जी का एकदम माँ जो आदेश देंगे ऐसा। तो एक दिन बिल्लू जी बहुत रो रहे हैं, शायद मीटिंग से आके ना कहाँ से बहुत रो रहे। तो मैंने कहा बिल्लू जी अब क्या इतना रोते क्यों, हमारा अच्छा नहीं लगता। तो बिल्लू जी ने कहा जो छोटी हमसे उम्र से कितना छोटी और हमको कैसा अपमान करके बात करते हैं, हाँ सहन नहीं है था पुष्पादी, कभी कभी मन में लग जाता है। तो मैंने कहा वो बोला तो बोला, आप भी दो बात सुना देते हैं, तब तो अंदर में कुछ ये हो जाता है ना, कम हो जाता है जो वो सुनाया थे। तो बिल्लू जी कहा नहीं आप जानते नहीं, माँ बोलते हैं यहाँ मरने के लिए आया, मारने के लिए नहीं। ये माँ का मरने के लिए आया, अब मरने के माने अपना को मार दो, हाँ मारने के लिए नहीं आया। तो वही बात माँ ने कहा इसीलिए हमसे नहीं होता। देखो कैसा माँ का बात पालन करना, हम लोग तो ये सब जानते ही नहीं है। मैं तो कुछ जानते ही नहीं, जानते हैं माँ चाहिए हमारा, ये छोड़ के कुछ के बारे में ही बताइए, कुछ ऐसे अद्भुत अनुभव कुछ आपके सामने हुए? अद्भुत अनुभव तो होता ही रहता है। वो जो बोला ना पहला दिन जैसा माँ साथ साथ में रहा, फिर आपका संन्यास दीक्षा के बारे में बताइए। संन्यास दीक्षा में, संन्यास दीक्षा ऐसा हुआ माँ शरीर में रहते हुए दो जन देखा सपन में जो हमारा संन्यास हुआ। ये बात हमारा अच्छा नहीं लगता है कि संन्यास ऐसे माँ को क्या बहाना से माँ छोड़ा देंगे, कुछ ठीक है। तो ये बात हमारा अच्छा नहीं लगता है। तो प्रेमलता है ना डॉक्टर, डॉक्टर प्रेमलता रेलवे का डॉक्टर थे। तो अभी तो उसका तबीयत इतना ठीक नहीं, बहुत आते थे माँ के पास। तो वो माँ को जाके प्राइवेटली कहा जो माँ मैं देखा पुष्पदी का संन्यास हो गया।
तब हमारा पिताजी का भी सन्यास नहीं हुआ। पिताजी तो माँ ने जबरदस्ती एकदम पिताजी कर तो माँ को कहा ऐसा, तो माँ ने कहा এখন না बांग्ला में कहा এখন ना पौड़ी। हाँ, तो माँ ऐसा ढंग से कहा, वो समझ में उसका आ गया जो ये बात हमको बताना नहीं, समझा ना। तो इसीलिए थोड़ा दिन बाद हमको कहा, पुष्पादी हम देखा आपका सन्यास हो गया। माँ को प्राइवेट करके बोला, अब माँ क्या उस कुछ नहीं बोला हमको बोला जा। मैंने कहा तुमने नहीं देखा सन्यास हो गया? मैं तो देखा नहीं, तो तुम सन्यास ले लो। तो हम देखते तो हमारे ऐसा मन में आता है जो सन्यास लेना है तो तुम ले लो। तो बहुत हंसने लगा, ऐसा हुआ। तो फिर जब पिताजी का भी माँ ने सन्यास का बात अपना से उठाया। 94 उम्र तब पिताजी का। मैंने कहा आपको माँ बुला रही। तो पिताजी थोड़ा ऐसे, मैंने कहा जो माँ ने ऐसा शब्द बोला, तो पिताजी सोचा मैं बोला माँ को, हम तो एक शब्द भी बोला नहीं। तो माँ अपना से बोला। तो मैंने कहा पिताजी ने कहा क्या तुम लोग जो क्या बोलते हैं सन्यास माने क्या है? माने पिताजी सोचते हैं 2 दफा तो भगवान को नाम लेते ही है, भगवान भोलागिरी का शिष्य है, भोलागिरी आश्रम का। और क्या छोड़ना तो सब छोड़ हो ही गया, तो फिर सन्यास क्या? तो पिताजी एकदम बोला सन्यास क्या है? माँ जानते हैं हमारे अंदर का भाव, माँ ही बोल ही नहीं सकते। तो मैंने कहा देखिए आप माँ का ख्याल से तो 10 साल से बनारस है। फिर हमारा माँ का भी बनारस में विश्वनाथ का चरण में हुआ। तो अभी आपका 94 उम्र है और जितना बाकी है जीवन, आप माँ का ख्याल में चलेंगे कि अपना इच्छा में चलेंगे, ये आप सोचिए। क्यों छोटा भाई आ गया ना, आके कहा जो पिताजी के लिए कमरा भी ठीक करके आया, एक छोटा नौकर की रख के आया, हम भागवत हो जाएगा तो पिताजी को ले जाएंगे। तो पिताजी सोच रहा जो बस ठीक टाइम में चाव मिल जाएगा। पुष्पा तो हमको देखते ही नहीं, माँ के साथ साथ चलते हैं। तो बस पिताजी ठीक कर रहा जो अच्छा अभी इस उम्र में तो आराम चाहते हैं अंदर से। तो पिताजी बोला सन्यास क्या, सन्यास अर्थ क्या है? तो मैंने कहा वो तो हम जानते नहीं, आप माँ को पूछिए, जो उन्होंने बोला उनको पूछिए। तो ले चलो, माँ के पास जाने का उपाय है। सब तो ऐसा घेरा दे के बैठ रहता है। तो मैंने कहा आप चलिए माँ को जाके मैं कान में बोला, माँ पिताजी राजी हुआ, लेकिन बोला घर में तो कमरा में तो लोग भरती। माँ ने कहा अभी खाली हो जाए, ले जल्दी। तो माँ ने एक शब्द करके एकदम 2 मिनट में कमरा खाली कर दिया। तो पिताजी आया। तो हम लोग जैसे माँ के साथ लड़ाई झगड़ा ऐसा करते थे, लेकिन पहला ज़माना में ऐसा नहीं था। अपना से जो बड़ा का साथ बहुत ही, ये जो पिताजी इतना गुस्सा हुआ, लेकिन माँ के पास जब आया एकदम नम्र आके प्रणाम किया। माँ एक बात पूछूं? बहुत बोला हाँ बाबा पूछो। तो हाथ जोड़ के कहा माँ सन्यास माने क्या होता है? ऐसा पूछा, बहुत धीरे से पूछा सन्यास। तो माँ ने कहा बाबा सन्यास माने ये होता है सब त्याग, ऐसा कि शरीर जो सूख जाते हैं वो भी। क्यों पिताजी उस टाइम में पिताजी का सुख का ही, शरीर का सुख और कुछ नहीं। तो इसीलिए माँ ने उस पॉइंट में जोड़ दिया। हाँ, तो मुझे शरीर जो आराम चाहता है, सूख जाता है, वो भी त्याग। तो पिताजी एकदम चुप हो गया, होके बोला आप हमारा बारे में
जो करना चाहते हैं करिए, माने आपका जो इच्छा। आप तो जानते हैं हमारा अंदर तो देख रहा, तो माँ तो देख ही रहा है, जो संन्यास लेने का ये नहीं है। आप जो ठीक समझे हमारे लिए, ऐसा शब्द कहा, हमारे लिए आप जो ठीक समझे वही करिए। करके प्रणाम किया, माँ ने इतना खुश हो गया, माँ का काम तो हो ही गया। फिर माँ ने सिर में हाथ लगाया। माँ जब चली गई तो हमको माँ इतना प्यार किया, मैंने माँ का भी उद्धार किया, पिता का भी उद्धार किया। मैंने कहा माँ आप सब करते हैं, एक बीच में एक खड़ा कर देता है। हाँ, पूरा माँ ने क्या, बनारस ले आया दोनों को, ये भी अभी वानप्रस्थी हो जाओ, घर में क्या है, ऐसा करके आलादा ये किराया में घर लेके वृद्ध वयस में उन लोग रहा। और मैं तो माँ के साथ ही ज़्यादा रहा। तो माँ का क्या कृपा बोलूँ। तो फिर हमको ऐसा कहा, तो माँ जब शरीर छोड़ दिया तब माँ हमारा सन्यास्त हुआ 89 में। हाँ, तो माँ 82 में गया। अच्छा, पाही मां